हेलो एट क्लास, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे हैं। आवर chapter is quadrilateral. In this chapter we discuss about various topics: polygon, quadrilateral, types of quadrilateral, types of polygon, and property of the polygons, property of the quadrilateral, how we use property in some questions. And now we are going to solve out exercise 3.3 question number 10. In this previous video we discussed about question number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now we discuss about question number 10. What is the question number 10? Explain how this figure is interpreted. Which of the two sides are parallel? एक्सप्लेन करके ये बताना है कि ये जो आपको फिगर दिया है ट्रेपेजियम क्यों है और कौन कौन सी साइड्स जो है पैरेलल है। बट इससे पहले मैं आपको अपनी 7th क्लास में ले जाना चाहूंगा, जहां मैंने आपको एक छोटी सी चीज पढ़ाई थी, ट्रांसवर्सल करके एक छोटी चीज पढ़ाई थी, वो मैं आपको यहाँ फिर से बताना चाहूंगा, उसे शॉर्ट आउट करना चाहूंगा। देखिए वो क्या थी। इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन is intersecting two given lines such that the sum of measure of the angles of the same side of the transversal is 180, then the two lines will be parallel to each other. सर ये तो आपने लिख दिया, ये हमें समझ में नहीं आया सर। तो देख बेटा, टू लाइंस ले लेंगे, ये ट्रांसवर्सल लाइन लेंगे, इसका प्लस और इसका प्लस, इसका प्लस और इसका प्लस 180 है, इसका प्लस और इसका प्लस 180 है। ये लाइन L है, ये लाइन M है। पता है मैं इससे क्या कह रहा हूं कि L जो है वो किसके पैरेलल है? M के पैरेलल है। यहां जो L है वो किसके पैरेलल है? M के पैरेलल है। अब देखिए, और इन दोनों का प्लस कितना होना चाहिए? 180। मेरे को एक छोटी सी चीज बता, इन दिस क्वेश्चन एंगल KL प्लस एंगल NMN 100 प्लस 80 क्या 180 है क्या? 180 है, 180 means 180, then the two lines will be parallel to each other, which means KL is parallel to MN. Explanation is इन दोनों का प्लस 180, it means KL जो है किसके पैरेलल है? MN के पैरेलल है। KL is parallel to MN, KL is parallel to MN. I hope it's clear. Now we are going through question number 11. Simplest question, simplest, same thing we use in this question. सेम ही देखिए, यहाँ पे देखिए आप क्या कैसे शॉर्ट आउट करते हैं अपन इसको, A B C D। गिवन AB पैरेलल टू CD, DC लिख दीजिए, DC फाइंड आउट द मीजर ऑफ एंगल। अभी हमने क्या सीखा? जब टू लाइंस पैरेलल होती है तो ट्रांसवर्सल लाइन में सम जो होता है वो कितना होता है? 180 होता है। इट मींस एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल C, एंगल B 180। एंगल B और एंगल C का प्लस 180। व्हाई? बिकॉज़ मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर? What is the value of angle ABC? 120. Angle C की value DCB find out करनी है 180. So what is the value of DCB? DCB value is 180 minus 120 is 60 degree. What is the value of C? So C value is 60 degree. I hope it's clear. क्योंकि पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल लाइन का सम कितना होगा? 180. So B and C का सम 180. I hope it's clear. Now we discuss about question number 12.
in this question number 12 we use same important points. IP मतलब important points लिखा है मैंने. Clear? Now we discuss about question number 12. Simple सी lines है. Two lines are parallel. A transversal line intersect two parallel lines. Clear? Now ये जब इसको कट करनी है तो इनके सेम साइड में जो एंगल्स बनेंगे उन एंगल का सम कितना होगा बेटा लोग? उन एंगल का सम होगा 180. I hope it's clear. Now we are discuss about question number 12. Question number 12 is it's 130 PQRS. Simplest method. देखो आप find out the value of angle B and angle S. SP parallel RQ. SP parallel RQ. Clear? SP parallel RQ. Clear है? अब आपको ये बताना है, आपको एक छोटी सी चीज और बतानी है कि आप एंगल R को you find angle R in the more than one method to find angle M. If you one more method find out angle P. Simple. आपको ये बताना है क्या एंगल P जो है फाइंड आउट करने का कुछ मेथड हो सकता है क्या? चलिए डिस्कस करते हैं. सेम थिंग SP is parallel to RQ. SP is parallel to RQ. It means angle P plus angle Q is 180. Why? जो लास्ट चीज मैंने लिखी थी एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. एंगल ऑफ same side of transversal. Angle of same side of transversal. Clear? Angle P and Q is 180. Angle Q value is 130. So angle P value is 130 minus 50. What is the angle P value? What is the P value again? So find out the value of S. Same thing. Angle R plus angle S is 180. Angle R and angle S is 180. Angle R is given 90 degree. Angle R is 90 degree plus angle S is 180. So angle S value is 180 minus 90. It's 90 degrees. Sir, angle R plus S is 180. Why? Because angle of same side of a transversal line. जो स्टार्टिंग पॉइंट से आज से स्टार्ट करा था ना, सेम थिंग यहाँ मैंने 4 टाइम्स यूज करी है तीनों केसेस में. क्लियर? सो 180 में माइनस करा एंगल एस कितना आ गया? ये 50. नाउ अब अपने क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि वन मोर मेथड फाइंड आउट एंगल पे. इतना क्लियर है? देखिए इन दोनों का प्लस 180 सो 50 आ गया. आर रास्ता में प्लस 180 सो ये कितना आ गया? 90. अब देखिए आगे शॉर्ट आउट करते हैं. एंगल P आ गया ना आपके पास. फाइंड आउट वन मोर मेथड टू एंगल P. इतना क्लियर कर देता हूं. अब मैं ये लिखूंगा, आप मेरे को ये बताना वन मोर मेथड मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं. एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S 360. यस या नो? P Q R S is 360 या नो? यस. So what is the angle P value? We find out angle P value. What is the angle Q value? 130. Angle R value 90 and angle S value is 90 is equal to 360. When you sort out this, you find out the angle P value is 180. 180 is 30 is 50 degree. What is the angle of value P? One more method.
one more method. The sum of the property of a quadrilateral can be applied in this question because angle P, angle Q, angle R, angle S का प्लस कितना होता है 360 होता है. So what is the value of angle P? Angle P value is 50. I hope it's clear. Now we are going to 3.4. 3.4 basic property of the quadrilateral. Types of the quadrilateral and the property of the quadrilateral. When you discuss about 3.4, you must go through the previous video and look at the video of property types, why this property used in this figure and why not. All things are we discussed in previous video, so I want you go and see their video. Okay. Now we discuss about 3.4 questions. What is the 3.4? Simplest 3.4 is very simple. In the 3.4 first question, we discuss about true false. What is the true false? True बताने हैं आपको, false बताने हैं कि how is it true, how it's false. Clear? देखते हैं कैसे ये true है, कैसे ये false है. Look at this. Stand whether it is true and false. True and false. First is all rectangles are square. All rectangles are square. आपको ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स. आपकी बुक में सारी बातें जो आपने प्रॉपर्टी जब पढ़ाई गई थी वहां लिखी हुई है और फिर भी बता मैं ये कहता हूं ये फॉल्स है. सर अब आपसे क्वेश्चन आएगा सर व्हाई. आपने मेरे से क्वेश्चन दिया सर व्हाई, गिव मी रीजन. सो ऑल इज, आप क्या कहेंगे, आपको मैंने सिखाया था ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर. ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल. फर्स्ट रीजन दे देता हूं. ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल but all squares are rectangle but all rectangles are not square. सर ये तो आपने वही लिख दिया जो बुक में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन कीजिए. All squares are rectangle but all rectangles are not square. Now start. It's rectangle. X square. यहां से कहां है, यहां पे आ रहा है. तो देखिए यहां 90 हो गया, बीच एंगल 90, बीच एंगल 90. कोई डाउट नहीं. यहां आप क्या देख रहे हैं, अगर ये 4 है तो ये 4 होगी, अगर ये 6 है तो ये 6 होगी. आई एम राइट. बट यहां आप क्या देख रहे हैं कि अगर ये 4 है तो आपको ये भी 4 चाहिए, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी. क्या बट जैसे आप इधर से इस साइड आप आ रहे हैं, आपका एक पेज तो फाउंड हो रहा है बट अदर पेज फाउंड हो पा रहा है क्या? नहीं. इट मींस ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, सो इट्स फॉल्स. I hope it's clear. Now go through second. आपको सीधे के अगर आपको सीधा सा डायग्राम करना है और देखना है कि डायग्राम आपसे क्या है. सेकंड डिवीजन बी इज फर्स्ट का बी, फर्स्ट का ए एंड फर्स्ट का ए एंड फर्स्ट का बी. आर रोम्बस आर पैरेलल. आर रोम्बस आर parallel. Just do it out. I said it's true. Sir, by it's true. Now, one side of a rhombus are equal and parallel. मैंने सीधे एग्जाम दिया.
ये इसके इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होती है, पैरेलल भी होती है, पैरेलल भी होती है, ये इसके इक्वल होती है, ये इसके इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है. इट मींस all rhombus are parallelogram because opposite side of a rhombus are equal and parallel. Because opposite side of a rhombus are opposite side of a rhombus are equal and parallel, and same thing is applied in the parallelogram. It's clear? Now go through the third question. All squares are rhombus and also rectangle. All squares are rhombus and all squares are rhombus and also rectangles. Now, all squares are rhombus and also rectangles. Thus, 2 false, it's 2. Why? All squares are rhombus. Rhombus की 4 sides equal. Rhombus में भी 4 sides equal. In the first video we discussed about square जो है वो rectangle है, but rectangle है तो square नहीं है. And square और rectangle की बात करना चाहूँ मैं. Each angle 90 degrees. Each angle 90 degrees. Opposite sides are equal. Here rectangle opposite sides are equal. Square में opposite side equal होती है नहीं होती? ये side इसके equal, all sides equal होती है तो मतलब opposite side भी कैसी होगी? Equal. It means rectangle में भी opposite side कैसी होती? Equal होती है. It means it's also true. Clear? Now let's point D. Clear हो गया? A B C हुआ है. अब बात करते हैं D की. D point है all squares are not parallelogram. All squares are not parallelogram. D. It's false. It's false. Why sir it's false? Opposite sides are equal and parallel. Parallel. All squares are parallelogram. होते हैं भाई, जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सब पैरेललोग्राम होते हैं. ये ट्रू है, बट यहाँ नोट लगा के इसके पीछे क्या हो गया? फॉल्स और बाय. देखो स्क्वायर में क्या होता है? ये साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल. पैरेललोग्राम में भी ये साइड इसके इक्वल, इसके पैरेलल, ये साइड इसके इक्वल एंड इसके पैरेलल. ये सेम थिंग्स जो है इसमें अप्लाई हो रही है. इट मींस ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम. ये फॉल्स है. ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम. ये ट्रू होगा. क्लियर? नाउ ऑल काइट्स आर रोम्बस. ऑल सॉरी ये हो गया फॉल्स. अब ई की बात करते हैं. ऑल काइट्स आर रोम्बस. ऑल काइट्स आर रोम्बस. All sides are rhombus. E है ना? All sides are rhombus. All sides are rhombus. True या false? सीधा सिंपल दिखाई दे रहा है. false. इसमें फोर साइड इक्वल होती है, बट इसमें एडजेसेंट जो साइड होती है वो इक्वल होती है. एडजेसेंट साइड का एक पेयर जो होता है वो इसमें कैसा होता है? इक्वल होता है. बिकॉज वी नो दैट काइट्स ऑल साइड्स नॉट इक्वल. बिकॉज काइट्स की ऑल साइड्स जो होती है इक्वल नहीं होती, बट रोम्बस की ऑल साइड्स कैसी होती है? इक्वल होती है. इट मींस आंसर इज फॉल्स. ऑल रोम्बस आर काइट्स. ऑल रोम्बस आर काइट्स.
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्रॉपर्टी अपने को अच्छे से देखनी है। इट्स ट्रू एंड फॉल्स। ठीक, ए रोम्बस आल्सो हैज टू डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पैर ऑफ साइड्स आर इक्वल। क्या रोम्बस में एडजेसेंट साइड इक्वल होती है क्या? होती है ना। जब चारों साइड्स इक्वल है, जब फोर साइड्स आर इक्वल, देन एडजेसेंट साइड आल्सो इक्वल। ये रोम्बस बनाया मैंने, ये साइड इसके इक्वल, ये मैंने पाइप बनाई, ये साइड इसके इक्वल के प्रॉपर्टीज में दिखाई देगी क्या? देगी है सर। इट मींस से क्या हो जाएगा? ट्रू। इट मींस से क्या हो जाएगा? ट्रू। नाउ वी आर गोइंग टू जी। अगर ये आपको और अच्छे से नहीं, कुछ पॉइंट्स जो आपको क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो आज मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप पहले टाइप्स की प्रॉपर्टी पढ़ें, जो क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ें। जी, व्हाट इज द जी? G is what all parallelograms are trapezium. All parallelograms are trapezium. As true and false, G is true and false. Is true. Sir, why is true? Parallelogram की what property? Opposite sides parallel. But in this, one pair of opposite sides are parallel. क्लियर? यहां देखिए कि अगर आपको पहला वर्ड दिया गया ना, उसकी आप सारी प्रॉपर्टी एक तरफ लिख लें, जो आपको सेकंड पॉइंट दिया गया उसकी प्रॉपर्टी एक तरफ लिख लें। अगर पहले वाले की सारी प्रॉपर्टी उस दूसरे वाले में दिखाई दे, कुछ भी ना कुछ प्रॉपर्टी दिखाई दे जाती है, या मान लो टोटल प्रॉपर्टी दिखाई दे जाती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। ट्रू या फॉल्स? ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। इट्स ट्रू एंड फॉल्स? इट्स ट्रू। So why? Because squares have a pair of equal sides, pair of parallel sides। जो स्क्वायर होता है उसमें भी अपोजिट साइड कैसी होती है? पैरेलल। और ट्रेपेजियम में भी एक पैर कैसा होता है? पैरेलल। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया है। नाउ वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड? लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड। 3.4 is on the basic property of quadrilateral. All the quadrilaterals that have identified all the quadrilaterals that have first point is four side of equal length, and second is four right angles. क्वेश्चन में आपको अच्छे से आपको क्वाड्रिलेटरल बताते हैं जिसमें फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, फोर साइड्स होती है इक्वल लेंथ में होती है। वी नो दैट रोम्बस में फोर साइड्स कैसी होती है? इक्वल। एंड सेकंड इज स्क्वायर। स्क्वायर में फोर साइड्स कैसी होती है? इक्वल। फोर राइट एंगल्स किसमें होते हैं? रेक्टेंगल। फोर राइट एंगल्स किसमें होते हैं? स्क्वायर। It's clear? It's clear. Now we are going to question number 3. What is the question number 3? Explain how a square is. Explain how a square is.
Explain how a square is quadrilateral. In quadrilateral. आपको कहना है एक्सप्लेन एक स्क्वायर जो है क्वाड्रिलेटरल कैसे है. सो आंसर इज because its four sides. Answer is because its four sides. क्वाड्रिलेटरल ये प्रॉपर्टी क्या चाहिए सर, फोर साइड चाहिए तभी तो क्वाड्रिलेटरल का नाम आओगे ना. क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है क्योंकि उसके पास कितनी साइड्स है, फोर साइड्स. सेकंड इज ए पैरेललोग्राम. ए पैरेललोग्राम क्या पैरेललोग्राम आ गया, बिकॉज अपोजिट साइड पैरेलल्स. बिकॉज अपोजिट साइड्स पैरेलल. ये हम जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं. थर्ड सी ए रोम्बस. ए क्या एक स्क्वायर जो है रोम्बस है क्या भाई, क्या अपन डिस्कस कर चुके हैं क्या है. बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ. बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ. we discuss about this in question number first 3.4. Explain how a square and rhombus कैसे होगा, because all sides are equal length. D की बात करूं, D is a rectangle. मैंने यहां सिखाया था all squares are rectangle because all each angle measure is कितना होता है. each angle का measure 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री. I hope it's clear. फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए. फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है. फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए. Name the quadrilateral. Name the quadrilateral whose diagonals first is bisect each other. आपको ऐसे क्वाड्रिलेटरल के नाम बताने हैं जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो. सो आंसर इज सॉल्यूशन फर्स्ट का क्या आएगा, जो एक आपने को बताया पैरेललोग्राम, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. सेकंड इज आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. आर परपेंडिकुलर का साइड ऐसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. इसमें कौन कौन से आते हैं, रोम्बस एंड स्क्वायर. रोम्बस के दो डायगोनल एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, और स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, जो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं. थर्ड आर इक्वल. डायगोनल्स कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जहां डायगोनल्स जो है इक्वल होते हैं. आपको ये बताना है ऐसा कौन सा डायगोनल्स है, सॉरी ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जहां डायगोनल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं. तो यू नो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. When you know the property, you shoot out all of this question. It's clear. Now सिंपल सा था, आपको क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम क्या रोम्बस में स्क्वायर में, परपेंडिकुलर ईच अदर रोम्बस एंड स्क्वायर में, आर इक्वल. रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल्स कैसे होते हैं, इक्वल. क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. व्हाई रेक्टेंगल इज कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. सिंपल सा आंसर पूरा इसका है. रेक्टेंगल की शेप बता दीजिए. कन्वेक्स क्या कहता है,
कि ईच एंगल क्या होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। हाँ, यहाँ ईच एंगल क्या है, 90 से छोटा है। और सेकेंड थिंग, जो डायगोनल्स है वो क्या से इनसाइड है, और डायगोनल्स तब इनसाइड होते हैं जब एंगल क्या हो 180 से छोटा हो। तो आप क्या लिखेंगे, इन रेक्टेंगल दे आर टू डायगोनल्स बोथ लाइंग in the interior of the rectangle. In a rectangle, आप आंसर में लिख देंगे, in a rectangle there are two diagonals. There are two diagonals. Both lying in the इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए जो डायगोनल अंदर की साइड है, इट मींस जो एंगल है वो क्या है, 180 से छोटा है। तो इसमें ये रेक्टेंगल कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया है। बाकी की क्लास नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हैव ए गुड डे।